Hello friends, this is Animes and welcome to the Gate Mantra. In the last video, we have seen that about the number system conversion. We have seen how we are going to convert the decimal number system into the number system of any radix r, and how we are going to convert the any number system of any radix r into the decimal number system. And also we have seen that how we are converting the octal to binary and hexadecimal to binary, as well as vice versa. Now in this video we are going to study about the arithmetic operation. Okay, so first write the topic here. So in arithmetic operation we are going to see mainly the two things, that are addition and second subtraction. And we are going to see the addition and subtraction of binary number system, octal number system, decimal number system, as well as hexadecimal number system. For all these four number system we are going to study the arithmetic operation like addition and the subtraction. So first thing first, we are going to start with the decimal number system, because we have studied this type of addition and subtraction from our childhood. Okay, so let's see with the example. Okay, we are going to add this 4 6 7 that is given to the decimal number system plus 9 to 1. Okay, how we are going to add this? So for adding this, first we write 4 6 7 plus 9 2 1. Okay, and 7 plus 1 8, 6 plus 2 8, and 9 plus 4 13. So we are writing 3 here, and here is carry. Okay, this is carry. So after adding these two, we are getting the result 1388 in decimal number system. Again we are going to see with one more example. After that we are going to see the subtraction. Okay, and this is the example number 2. We are going to add, again for note, we are going to add 8 to 5, which is given to the decimal number system, plus 4 to 9, which are given to the decimal number system. So how we are going to add? First we are going to write this 2. Okay, 8 to 5 and 4 to 9. Okay, then 5 and plus 9, this is 14. So we are writing 4 here. Okay, and carry 1 here, and carry 1 here. Now we are going to add 2 plus 2 plus 1, this is equal to the 5, and carry here 0, and 8 plus 4 equal to 12, and we are going to write carry here. Okay, so after adding these two, which are given to a decimal number system, we are getting the result as 1254 in decimal number system. Now we are going to see the subtraction of the two number system, two number which are given into the decimal number system. Okay, then first, this is also we have to study through the example. Okay, right here 9 2 5 decimal minus 6 1 3 is also in the decimal number system. So for doing subtraction, we are going to write 9 to 5. Okay, 9 to 5
minus 6 to 1 3. Okay, then 5 minus 3 2, 2 minus 1 1, and 9 minus 6 3. We are going to get the result. Okay, if we are subtracting 1925, okay, and 613, if we are going to subtract 613 from the 925, we are going to get the result as 312 in the decimal number system. Okay, and this is seems to be easy because we are doing this type of addition as well as subtraction from our childhood. But when we are going to do this type of addition and subtraction into the decimal into the hexadecimal, octal as well as binary, it will feel little bit difficulty. Okay, but there will be no issue because we are going to simplify all the things. Okay, now see, let's see one more example. Okay, 6 5 3, this is given into the decimal, minus 495. Okay, this is also given in the decimal. So writing this 653 given to a decimal and 495, we are going to subtract. When we are going to subtract 3 minus 5, it is not possible. Then we are going to take 10 from here. Why 10? Why not 15? Why not 20? Why not 2? We are going to take 10 from here because if we are going to do subtraction in the decimal number system, then for the decimal number system radix is equal to 10. That's why we are going to take the radix that is equal to 10 from this digit. Okay, then we are going to take 10 here. Okay, then 10 plus 3 equal to 13, and 13 minus 5 equal to 8. Okay, and here it's remain 4. Okay, from 5 we are going to we have given 10, and here it's left with 4. 1 decrease, its 5 will decrease by 1, and it's remaining as a 4. It's remain as a 4. Now if we are going to subtract, okay, 9 from 4, it will not possible, so we are going to take 10 from here. Okay, we are going to take 10 from here. Why 10? Again, because it is the radix. So 10 plus 4, now it's become 4. Okay, it's become 4 after giving 10 to this. So 10 plus 4, that is 14, and if we are going to subtract 9 from the 14, we are going to get 5. Okay, 5 plus 9 equal to 14, and here it's remain only how much? 5. And if we are going to subtract 4 from 5, we are going to get it 1. Then it will be equal to the 158 in decimal. And here we are going to get the result like this. Okay, so after subtracting the 653, okay, after subtracting the 495 from 653, we are going to get the result as 158 in the decimal. And why we are taking 10 from here? Because its radix is 10. Okay, if radix will be equal to 5 or 3 or 2, we are going to take it 2 or 3 from here. Okay, that we will going to see in the last. Now let's see one more example. Okay, to clear the concept. Here is given 765 in the decimal number system, minus, okay, 5 8 4 in the decimal number system.
So first we are going to write this 2 765, okay, and then 584. And if we are going to subtract 4 from 5, we are going to get this as a 1, okay. And now we are going to subtract 8 from the 6. It is not possible. Then what we are going to do, we have taken the 10, borrow from here, okay, 10 उधार ले लिए मैंने 10 इससे, okay. So 10 plus 6, that is 16, and 16 if we are going to subtract 8 from 16, okay, we will get what is 8 here, okay. And here it's remaining 6, it remain at 6, not at 7, it's remain at 6. And if we are going to subtract 5 from 6, we are going to get 1, so 181. If we do this subtraction, we have getting 181, okay, in this number system. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर ये ज़्यादा है, जिसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है इस नंबर से, अगर वो नंबर ज़्यादा है, ठीक, देन हम लोग उस केस में बोरो लेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट से, ओके। और अगर जितना रेडिक्स होगा उतना बोरो लेंगे। अगर रेडिक्स 10 है तो 10 लिए, डिसिमल के लिए 10 लिए। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ से 5 आता, जो कि ऑक्टल में हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं बाइनरी में किस तरह से हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो let's take the example in the binary. We have given 1 0 1 0, okay, plus 1 1 0 1, or simply make it 0 here if we don't want any carry first, okay. Now how to do this addition? First write here 1 0 1 0 and again 0 1 0 1. We are going to do subtraction. 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 equal to 1, 0 plus 1 equal to 1, and 1 plus 0 equal to 1, and this will be equal to 4 1, and here it will be 2. Then if we are going to do addition like this, we are going to get the result as 1 1 1 1. अगर हम लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कन्वर्ट करके इसको डिसिमल में, तो इसको अगर हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट किए तो ये हो गया 10। अगर इसको हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट किए तो ये कितना हुआ 4 और प्लस 1 5, ओके, और 10 प्लस 5 15 होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 4, 8 प्लस 4 12, और यहाँ पे हो गया 12 प्लस 2 15, और ये 1 15 प्लस 1 16, ओके। ये कैसे करेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 इंटू 2 टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 15, ओके। और सिंपली ऐसे करने के लिए अगर हम लोग को बाइनरी में करने में डिफ़िकल्टी है तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे 0 2, ओके, 4 8, ओके, 0 2 4 8, और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, 1 2 4 8, 2 टू पावर 0 1 होता है, 1 2 4 8, ठीक, 1 2 4 8 1 2 4 8। और सिंपली जहाँ जहाँ 1 है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, ओके, 1 प्रेजेंट है यहाँ, तो 8 प्लस 2 10, ओके, यहाँ पे हो गया 4 और प्लस 1 5, और यहाँ पे भी कर देंगे 8 4 2 1, देन 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो यहाँ पे होप कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। Again we are going to take the one more example, 1 0 1 1 plus 0 1 1 0, okay. These both are in the binary. After doing the addition, what we are going to get in the binary, okay. Then for this, first write 1 0 1 0 and then 0 1 1 0. We are going to do
we are going to perform addition here. Then 1 plus 0 will be equal to 1. Okay, 1 plus 1 2. 1 plus 1 कितना होगा? If we are adding 1 plus 1 2, but बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 2 नहीं रख सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? r माइनस 1 मैक्सिमम नंबर। तो r कितना है? 2, तो 2 माइनस 2 1। तो यहाँ पे 1 ही मैक्सिमम नंबर हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग 1 प्लस 1 जो 2 आया, ओके, तो 2 को हम लोग 2 से घटाएंगे और 0 वहाँ यहाँ पे लिखेंगे, ओके, और 1 यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया होगा? 1 प्लस 1 2 हुआ, ओके। जितना रेडिक्स है उसमें से इसको माइनस करें, 0 0 हम लोग यहाँ लिखें, और जो 1 जो कैरी है हम लोग यहाँ पे लिख दिए। एंड अगेन 1 प्लस 0 प्लस 1 2 हुआ, तो 0 यहाँ पे रख दिए और कैरी यहाँ पे रख दिए। अगेन 1 प्लस 1 0 हुआ, ओके, 1 प्लस 1 2 हुआ, तो 0 यहाँ पे रखें और कैरी यहाँ पे हम लोग रख दिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। आफ्टर डूइंग द एडिशन, अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये कितना हुआ? 8 4 2 1, यहाँ पे 8 4 2 1, ओके। तो 8 प्लस 2 10 एंड प्लस 1 यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ पे 4 प्लस 2 और यहाँ पे 6 हुआ, ओके। एंड 13 प्लस 6 इक्वल टू 19। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 16, ओके। यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। 4 8 प्लस 2 10 एंड प्लस 1, यहाँ पे 11 होगा, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 11 होगा। 8 प्लस 2 एंड प्लस 1 11, 11 प्लस 6 इक्वल टू 17, ओके। यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे 17 होगा। एंड अगेन हम लोग ऐड करने के बाद भी कितना हुआ? यहाँ पे 6 और प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 70। तो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग को बाइनरी में करने में डिफिकल्टी आ रही है तो हम लोग सिंपली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम लोग ऐड करेंगे दो को, ठीक, 1 0 लिख दिए। अगर हम लोग 1 1 को ऐड किए, ठीक, तो हम लोग का मैक्सिमम नंबर जो होता है बाइनरी में वो हम लोग 1 रखते हैं, ओके। 0 एंड 1 हम लोग 2 नहीं रखते, 2 नहीं रखते। इसीलिए जितना भी इसका रेडिक्स है उससे जो नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे। कैरी 1 ये कैरी हुआ जो कि यहाँ पे लिखेंगे। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, ओके। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। 0 1 1 0 plus 1 1 1 0, okay. What we are going to get in the binary? So first write this 1 1 1 0 and do addition. 0 plus 0 0 and 1 plus 1, again it will be 2। और 2 अगर 2 आया तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 को हम लोग लिखेंगे 0 एंड कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका रेडिक्स जो होता है वो 2 है और इसमें मैक्सिमम नंबर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसलिए अगर 2 आया ये, तो हम लोग जितना रेडिक्स है उसमें से जो आया उसको रिमूव, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो भी बचा उसको लिखेंगे, ओके। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए और आगे हम लोग कैरी दे दिए इसको, ओके। यहाँ पे कैरी दे दिए। फिर हम लोग ऐड किए 1 प्लस 1 प्लस 1 13, 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके। कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या हम 3 लिखेंगे क्या बाइनरी नंबर सिस्टम में? नहीं, हम लोग 3 नहीं लिखेंगे, ओके। हम लोग 3 नहीं लिखेंगे। तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे अगेन, फिर 2 में से हम लोग सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आ रहा है, ओके। तो हम लोग सब्सट्रैक्ट किए इसमें से
3 माइनस 2, क्योंकि हम लोग का रेडिक्स 2 है, इक्वल टू 1। तो हम लोग 1 यहाँ पे लिखें और 0 और 1 आगे फॉरवर्ड कर दें। ओके, ठीक है। एंड अगेन 1 + 1 0 एंड 1 आगे फॉरवर्ड कर दें, और ये किस में आ गया, बाइनरी में। हम लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं 8 4 2 1 कितना हुआ, ये 4 + 2 6 हुआ, और यहाँ पे 8 4 2 1 कितना हुआ, 8 + 4 12 एंड +2 दैट इज 14। अगर हम लोग 14 एंड 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 आना चाहिए। देन देखिए क्या 20 आ रहा है क्या, यहाँ पे हो गया 16, 8 4 2 1, तो 16 एंड +4 ये 20 आया, तो ये राइट है। ओके, अगर हम लोग को दिक्कत हो रहा है इसमें बाइनरी में, तो हम लोग सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइनरी डिजिट जो कम दिया उसके लिए अगर यही बाइनरी जो होता है वो बहुत बड़ा दे देता, लगभग 16 बिट का, तो फिर मुश्किल हो जाता करने में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सबट्रैक्शन। ओके, देन सी द एग्जांपल 1 1 0 1 minus 0 1 0 0। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो फॉर डूइंग सबट्रैक्शन सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है नंबर हम लोग को, 1 1 0 1 एंड 0 1 0 0, एंड अगेन वी आर गोइंग टू डू सबट्रैक्शन। सो 1 में से 0 गया बचा 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, एंड 1 में से 0 गया बचा 1। और यहाँ पे क्या लिखें, 2। अगर इसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे करें 8 4 2 1। ओके, 8 4 12 एंड +1 यहाँ पे हो गया 13, और यहाँ पे हो गया 8 4 2 1, यहाँ पे हो गया 4। 13 में से हम लोग अगर 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, 7 बचा, सॉरी 7 नहीं बचा, 9 9 बचा, 9 बचा। तो ये देखिए क्या 9 आता है क्या, 8 4 2 1, तो 8 + 1 = 9, तो हम लोग का सही है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, वन 0 1 0 माइनस 1 1 सॉरी 1 0 0 1, इसको हम लोग सब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखें हम लोग, जो नंबर दिया हुआ है, जो बाइनरी डिजिट दिया हुआ है उसको 1 0 0 1 माइनस 0 में से 1 जाएगा क्या, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ से ये ये कितना उधार लेगा, तो यहाँ से जितना रेडिक्स है उतना ये लेगा, जितना रेडिक्स है उतना लेगा। रेडिक्स कितना है 2, तो ये 2 लिया। ओके, अब 2 में से 1 गया कितना बचा 1, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना रह गया देने के बाद, यहाँ पे रह गया 0, इसको देने के बाद यहाँ पे 0 हो गया, एंड 0 में से 0 गया 0 बचा। ओके, 0 में से 0 गया 0 बचा, एंड 1 में से 1 गया 0 बचा, और ये जो होता है ये बाइनरी में हो गया। इसको हम लोग क्रॉस चेक एक बार कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 8 4 2 1 8 4 2 1, तो 8 + 2 यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 8 एंड +1 यहाँ पे 9 हो गया। तो 10 में से 9 अगर हम लोग करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी 8 4 2 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 होगा, तो ये भी सही है। तो हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं, ओके, तो 1 और +1 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 1 2 हुआ, लेकिन हम लोग 2 को नहीं लिख सकते, ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसलिए उसको हम लोग 2 जितना भी नंबर आया हमको उसमें से हम लोग रेडिक्स को रिमूव करेंगे, और कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और कैरी यहाँ पे लिख देंगे, ये कैरी है। और सबट्रैक्ट करते समय अगर हम लोग 1 में से 1 अगर रिमूव करना हुआ, ठीक, तो 1 में से 1 चला ही जगह 0 होगा। अगर हम लोग को 0 में से 1 रिमूव करना हुआ, तो हम लोग कितना बोरो लेंगे, यहाँ से
हम लोग बोरो लेते हैं उतना ही जितना रेडिक्स हो। ओके, तो रेडिक्स हुआ 2, तो 2 हम लोग बोरो लेंगे, तो 2 में से 0, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ओके, और यहाँ पे बोरो आ जाएगा 1। बोरो भी नहीं है, बोरो कुछ नहीं होता है, वो कैरी ही होता है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द ऑक्टल। ओके, इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको अगेन। तो यहाँ पे कोई भी हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम ले लिए, 5 6 7 प्लस 4, इजी लेते हैं, 2 1 0। ओके, और इसको हम लोग, इस एडिशन को हम लोग ऑक्टल में परफॉर्म करना है। तो ऑक्टल में परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो दिया है नंबर उसको ले लेंगे। तो 5 6 7 इन ऑक्टल एंड 2 1 0 इन ऑक्टल, और यहाँ पे एडिशन हम लोग कर रहे हैं। तो 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 एंड 5 प्लस 1 इक्वल टू 7, एंड ये ऑक्टल में है। ओके, तो ये एडिशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया, कितना हुआ, 7 7 7। ओके, 777 इन ऑक्टल number system. Now let's see one more example. 6 2 1 octal plus 0, okay, 6 and 7. Now we are going to solve this. Simply take this 6 2 1 and 0 6 7, both are given in octal, and do the addition. Then 7 plus 1 कितना हुआ, 8। तो क्या हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे क्या, नहीं, we cannot write 8 here, because in any number system whose radix is r, किसी भी नंबर सिस्टम का जिसका रेडिक्स कितना है, r है, किसी भी नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स जो होता है वो r है, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो r माइनस 1 होगा। तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स जो होता है वो 8 होता है, तो जो ये मैक्सिमम नंबर इसमें होगा वो r माइनस 1 दैट इज 7 होगा। तो यहाँ पे 8 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करें, जो ये 8 नंबर आया उसमें से हम लोग जो रेडिक्स है उसको हम लोग, ये रेडिक्स है, ओके 8, ये जो नंबर आया वो है, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 0। तो यहाँ पे हम लोग 8 नहीं 0 लिखेंगे। क्या यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग एक कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, एंड अगेन आफ्टर डूइंग दिस एडिशन, ठीक, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड प्लस 6 9। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 9 लिख सकते हैं, नो हम लोग 9 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 7 तक ही लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 9 में से हम लोग 8 को रिमूव करेंगे, बचा कितना 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ये कैरी है, ये 1 कैरी है, 1 कैरी हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। अगेन 6 प्लस 1 7, तो क्या 7 लिख सकते हैं, हाँ 7 लिख सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 8 है, और ये हम लोग का ऑक्टल में रिजल्ट आ गया। तो इस एडिशन को परफॉर्म करने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वह 710 इन ऑक्टल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल लेते हैं कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छा करने के लिए। चलिए 6 5 6 5 7, ओके, ये हम लोग का ऑक्टल हो गया, प्लस 4 2 5, ओके, ये भी ऑक्टल। इसको एडिशन करने के बाद रिजल्ट भी हम लोग को ऑक्टल में ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सबसे पहले तो जो नंबर दिया उसको लिख लेते हैं, 657 एंड 4 2 5, दोनों ऑक्टल में है।
और यहाँ पे हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो 7 + 5 कितना होगा 12, तो 12 यहाँ पे लिख दें। नहीं, ये रॉन्ग है, 12 हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 12 हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगेन सेम वही डिस्कशन की, इसका रेडिक्स जो होता है 8 है और इसमें मैक्सिमम नंबर अप टू 7 लिख सकते हैं, 0 to 7, इसमें 8 नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 12 नंबर आया है उसमें से हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे सिंपली। अब इसको हम लोग ऐड किए, 5 + 1 दैट इज 6 एंड +2 दैट इज 8। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख दें, नहीं ये 8 नहीं हो पाएगा। अगेन सेम डिस्कशन, तो हम लोग क्या करेंगे 8 में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग 0 लिखें और 1 कैरी अगेन फॉरवर्ड कर दिए, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अगेन 6 + 4 10 एंड 10 + 1 11। तो 11 तो हम लिखेंगे नहीं, तो 11 - 8 किए, कितना बचा 3। तो यहाँ पे 3 लिखें और एक कैरी हम लोग फॉरवर्ड कर दें। जो कैरी है वो यहाँ पे फॉरवर्ड किए और 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यही कैरी यहाँ पे आ गया। तो अगेन if we are performing the addition of these two number in the octal, we are going to get the result like this in the octal. Okay, I hope ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा एडिशन का। और फिर हम लोग देखते हैं कि ऑक्टल में हम लोग सब्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 6 4 5 इन ऑक्टल माइनस 6, ओके 2 एंड यहाँ पे 3 ले लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 5 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हम लोग ऑक्टल में लिख लें और हम लोग को रिजल्ट भी ऑक्टल में ही चाहिए। तो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया उसको लिख लेंगे। ओके, ये दोनों नंबर ऑक्टल में दिए हुए हैं और देन हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे। देन 5 + 3 = 8। सॉरी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है हम लोग को, एडिशन नहीं करना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 एंड 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। ये भी ऑक्टल में है। तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 2 2 इन ऑक्टल। अगेन हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। कितना नहीं है 7 5 2 ऑक्टल में लिए -1 7 एंड 5। ओके, ये भी ऑक्टल में लिए, इसका भी रिजल्ट हम लोग को ऑक्टल में ही चाहिए। तो सबसे पहले जो नंबर दिया वो हम लोग लिख लिए 752 and then 75 is given in octal, and after doing subtraction, okay, what we are going to get, then if we do the subtraction, if we subtract the 5 from 2, then we have to take the borrow from here, and हम लोग borrow कितना लेते हैं, जितना रेडिक्स होता है उतना ही हम लोग borrow लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 8 borrow लेंगे, जितना लेंगे 10 लेंगे, क्या नहीं, ये अगर डिसिमल नंबर सिस्टम होता तो यहाँ पे हम लोग 10 बोरो ले सकते थे, लेकिन ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ से 8 लेंगे बोरो। ठीक, तो 8 एंड +2 ऐड करेंगे, कितना हुआ 10, और 10 में से 5 हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, और यहाँ पे ये अब 5 ना होके यहाँ पे 4 हो जाएगा। देन 4 में से क्या हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो अगेन यहाँ से ये बोरो लेगा और कितना लेगा, यहाँ से 10 लेगा। सॉरी 10 नहीं लेगा, अगर डेसिमल रहता तो 10 लेता ना, ये ऑक्टल है तो ऑक्टल में 10 नहीं लेगा, ये 8 लेगा। ओके, 8, तो 8 + 4 12, और 12 में से अगर हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा 5। ओके, और यहाँ पे ये 7 ना होके यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 में से 1 अगर हम लोग को रिमूव करेंगे तो हो गया 555 एंड इट्स ऑक्टल। तो आफ्टर डूइंग दिस
subtraction, we are going to get the result like 555 in octal. एक और देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके अच्छे से. 6 4 और 5 645 minus 2 5 and 7. ओके, ये भी ऑक्टल. हम लोग को रिजल्ट जो चाहिए वो भी हम लोग को ऑक्टल में ही चाहिए. देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे 645 ओके एंड 257. ओके, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से क्या 7 सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं. तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग बोरो लेंगे. कितना लेंगे? 8 लेंगे, क्योंकि जितना रेडिक्स रहता है उतना ही हम लोग लेते हैं. तो 8 + 5 करेंगे, कितना हुआ 13. एंड 13 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो बचा कितना 6. ओके, एंड ये जो है अब ये 4 नहीं रहेगा, ये 4 से घट के 3 हो जाएगा. ओके, 4 से घट के ये 4 से घट के 3 हो जाएगा. 3 में से 5 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते एंड हेंस हम लोग यहाँ से अगेन बोरो लेंगे. कितना लेंगे? सेम 8 लेंगे. तो 8 + 3 11 और 11 में से 5 को किए तो ये 6 बचा. एंड यहाँ पे कितना बचा? ये 6 ना बच के यहाँ पे 5 बचा और 5 में से 2 घटाए हम लोग 3 बचा. 366. So after doing this, after subtracting 257 from 645, we are going to get the result as 366 in octal. होप ये क्लियर हो गया होगा. ओके, एक और ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, और कुछ नहीं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ये हम लोग ले लिए 5 4 9. सॉरी 9 यहाँ पे ले सकते हैं क्या ऑक्टल में? 9 हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर हम लोग 7 तक ही जा सकते हैं. यहाँ पे 6 ले लिए और माइनस ले लिए 2 6 एंड यहाँ पे 6. ये सब्सट्रैक्शन हम लोग को परफॉर्म करना है. एंड हियर व्हाट वी आर गोइंग टू get 546 and 266, both are given in the octal. Then if we are going to subtract 6 from the 6, we are going to get here 0. And if we are subtracting 6 from 4, we cannot subtract, so we have to take the borrow from next possible digit. So if we are taking borrow here 8, then 8 plus 4, what will be equal to 12, and 12 minus 6, 12 minus 6 will be equal to 6. Okay, and it will be now decreased by 1, it will be equal to 4, and 4 minus 2, okay, this is 216 octal. So after performing this subtraction, we are going to get 216 in octal. Now we are going to do the arithmetic operation for the hexadecimal number system. Okay, for hexadecimal number system. So again we are going to learn this by the example. Okay, suppose A5 2 in the hexadecimal minus 6 4 0 in the hexadecimal. Sorry, we are going to do the addition, not the subtraction. First we are going to see the addition, after that we are going to do subtraction. Okay, so write here plus. So for doing the addition, first write here the given number. Okay, A52 and 640, both are in the hexadecimal. Then 2 plus 0 2, 5 plus 4 9 and A plus 6. ये हम लोग किसको बोलते हैं? 10 को. ओके, 10 को बोलते हैं. 10 plus 6 होगा 16 और इसका रेडिक्स कितना है? 16. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. 0 बचा, 0 को यहाँ लिखेंगे और जो भी एक कैरी बचा वो कैरी को यहाँ लिख देंगे और यही कैरी यहाँ पे आ जाएगा. ओके,
और ये हो गया हेक्साडेसिमल। सही है। तो आफ्टर डूइंग दिस एडिशन वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट एट 1092 इन हेक्साडेसिमल। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस रहे। लेते हैं C6 2 लेते हैं। ओके, एडिशन करते हैं। यहाँ पे 9, ओके, यहाँ पे लेते हैं हम लोग B और यहाँ पे लेते हैं हम लोग F। ओके, ये बोथ आर गिवन इनटू द हेक्साडेसिमल। तो इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं एडिशन। तो फर्स्ट जो नंबर दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? 662 C62 and 9 BF। okay, both are given into the hexadecimal and now we are going to perform the addition। then F को हम लोग कितना बोलते हैं? F को हम लोग 15 बोलते हैं। ओके, 15 प्लस 2 कितना हुआ? 17। तो क्या 17 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं, 17 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका रेडियस कितना हुआ? 16 हुआ। तो सबसे पहले 17 में से हम लोग 16 को रिमूव करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे बचा 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एक हम लोग कैरी लिख कर लेंगे। ओके, कैरी फॉरवर्ड करने के। देन बी को हम लोग कितना बोलते हैं? बी को हम लोग बोलते हैं 11। ठीक, 11 प्लस 6 कितना हुआ? 17 एंड 17 प्लस 1 18। या 18 को लिख सकते हैं? नहीं, तो 18 में से हम लोग 16 को रिमूव करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम लोग को आया 2 और 2 यहाँ पे लिख देंगे एंड 1 कैरी हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। देन सी को हम लोग कितना बोलते हैं? सी को हम लोग 12 लिखते हैं। तो 12 एंड प्लस 10 22 हुआ। तो 22 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो 22 माइनस हम लोग 16 रिमूव करेंगे। तो 16 एंड 4 20 और यहाँ बचा 6। ओके, तो यहाँ हम लोग 6 लिख दिए और 1 यहाँ पे कैरी कर दिए। 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कैरी है हम लोग। ओके, कैरी, और ये हम लोग लिख आफ्टर डूइंग एडिशन। ओके, अब हम लोग सब्सट्रैक्शन सीखते हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल में सब्सट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं थ्रू द एग्जांपल। ओके, तो फर्स्ट हम लोग ले लिए B 5 9 माइनस हम लोग ले लिए 4 6 5। ओके, बोथ आर इन हेक्साडेसिमल। हम लोग को रिजल्ट भी चाहिए हेक्साडेसिमल में ही। सबसे पहले जो गिवन नंबर है वो ले लिए हम लोग B 59 एंड 4 65। ओके, हम लोग सब्सट्रैक्शन ये, तो 9 में से 5 के कितना बचा हुआ? 4 एंड 5 में से 6 हम लोग नहीं सब्सट्रैक्ट कर सकते। तो यहाँ से हम लोग कितना बोरो लिए? 10 10 बोरो लिए। 10 नहीं, हम लोग 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 हम लोग डिसमल में लेते हैं। ओके, जितना रेडिक्स होता है उतना ही हम लोग बोरो लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 16 इससे बोरो लिए। ओके, 16 हम लोग उधार लिए इससे। तो 16 प्लस 5 कितना हुआ? 21 एंड 21 में से 6 गया। ओके, कितना बचा? 15। ओके, और 15 को हम लोग F बोलते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे B, अब B नहीं रहा, इसमें से एक रिमूव कर दिए हम लोग, तो ये A बच गया और A में से 4 जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बचा, तो 6F4। ओके, 6F4 ये कितना है? इन हेक्साडेसिमल। तो ये परफॉर्म करने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो 6F4 आएगा। अगर हम लोग कोई भी डाउट होता है तो सिंपली इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में? डिसमल में। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे डिसमल में और इसको हम लोग भी कन्वर्ट कर लेंगे डिसमल में और देख लेंगे सही है या गलत। बाकी वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे। सिंपली हम लोग इस तरह से परफॉर्म करेंगे सब्सट्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो एक और ले लिए हम लोग F A B
और में से हम लोग सबट्रैक्ट किए कितना, सी ए डी। ओके, तो बी कितना हुआ, बी मतलब 11 हुआ। ओके, और डी कितना हुआ, डी मतलब 13 हुआ। ओके, बी सी 12 एंड डी 13। तो 11 में से क्या 13 हम लोग रिमूव कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, बोरो लेंगे। बोरो कितना लेंगे, बोरो हम लोग 16 लेंगे, क्योंकि 16 ही इसका रेडिक्स है। तो 11 प्लस 16 कितना हुआ, तो 16 प्लस 10 कितना हुआ, 26 एंड 1 27। तो 27 में से अगर हम लोग 13 को रिमूव किए, ओके, 27 में से हम लोग कितने को रिमूव कर रहे हैं, 13 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को आया 14 एंड 14 को हम लोग लिखते हैं ई। ओके, और यहाँ पे ए नहीं रहा, अब ए -1 हो गया, जिसको कि हम लोग बोलेंगे 9। तो 9 में से 10 हो सकता है क्या, सबट्रैक्ट, नहीं होगा। 9 में से 10 नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हम लोग को अगेन एक बोरो लेना पड़ेगा, जो कि होगा 16। देन 16 प्लस 9 कितना हुआ, 16 एंड प्लस 4 हुआ 20 एंड 20 प्लस 5 25। और 25 में से अगर हम लोग 10 गए, कितना बचा, 15, और 15 को हम लोग एफ लिखते हैं। और यहाँ पे एफ अब नहीं बचा, 1 बोरो देने के बाद ये एफ जो हो गया वह ई बच गया। ओके, और ई में से सी गया, ई को हम लोग कितना बोलते हैं, 14, और सी को हम लोग कितना बोलते हैं, सी को हम लोग बोलते हैं 12। ओके, 14 में से 12 गया, 2 बचा। ओके, 2 एफ ई इन द हेक्साडेसिमल। So after doing this, we are going to get 2fe. Okay, so after doing the subtraction, fab minus cad both are in hexadecimal, we are going to get 2fe in hexadecimal. Now again we are going to see the one more example, and this will be the last example of this session, and in next video we are going to start with the complement. Okay, because if we are going to start complement in this video, then this video will be very long. Okay, so let's see the example. It is a b c that is minus 6 d e. Okay, in hexadecimal. Okay, what we are expecting the result in hexadecimal only. Okay, then write first what's given in the question. 6d. देन ये सी को हम लोग क्या लिखते हैं, सी को हम लोग 12 लिखते हैं, और ई को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ई को 14 लिखते हैं। ओके, 12 में से 14 क्या सब्सट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे। बोरो कितना देगा, ये बोरो 1 2 या 10 कितना देगा, बोरो ये 16 देगा। जितना इसका रेडिक्स होता है उतना ही बोरो प्रोवाइड करता है। तो 16 प्लस 12 हाउ मच, 16 प्लस 10 26 एंड प्लस 2 28। 28 में से हम लोग को 14 करना है, तो 28 में से हम लोग को 14 रिमूव किए तो 14 बचा, और 14 को हम लोग कितना लिखते हैं, ई लिखते हैं। ओके, एंड अब ये बी नहीं रहा, और बी जो हो गया कन्वर्ट हो गया ए में। ओके, तो ए में से डी, ए कितना, ए को 10 बोलते हैं, और डी को हम लोग बोलते हैं 13। तो क्या 10 में से 13 जाएगा, नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगेन ये बोरो लेगा, और ये कितना बोरो लेगा, 16 लेगा। तो 16 प्लस 10 26 एंड 26 में से 13 गया, देन 13 बचा, तो यहाँ पे डी बचा। ओके, एंड यहाँ पे ये ए ना होके कितना बचा, 9 बचा, और 9 में से 6 गया, यहाँ पे 3 बचा, 3de. So after doing this subtraction, okay, after doing this subtraction, we are going to get the result 3de in 16 in hexadecimal. Okay, so I hope this topic will be clear to all of you, and if there will be any doubt, please post it into our Telegram channel, that is
get mantra. Okay, if we are search t.me get mantra. Okay, or only if we are search get mantra, it will be available on the Telegram. Okay, in next video we are going to see the complement. So before closing this session, let's make the revision what we have studied in this session. So in this session we have studied to do the arithmetic operation. Okay, for arithmetic operation we have mainly focused on the addition and well as subtraction process. So first we have done the addition for the decimal, and then we have done addition subtraction for the decimal, and then we went for the binary, and in binary we have studied about the addition as well as subtraction operation, and the same way we have done addition and subtraction for the octal and again for the hexadecimal. If there will be any doubt regarding this topic, please post it on my Telegram channel. Okay, get mantra. Thank you.